آپ ہم سے بلہ روکنے کی کوشش کر رہے ہو جس کی وجہ سے ہمیں یہ آج کا اقدام کرنا پڑا۔ میں جب تک ہوں خان صاحب کے نمائندے کے طور پہ کروں گا، یہ منصب اس وقت تک میرے پاس ایک امانت کی طرح پہ ہوگا جب تک خان صاحب واپس نہیں آتے۔ خان صاحب عمران احمد خان نیازی صاحب چیئرمین تھے، آج بھی چیئرمین ہے اور انشاءاللہ چیئرمین تا حیات رہے۔ میں اس نہایت اہم منصب کی ذمہ داری سونپنے پہ خان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج یہ انپوز منتخب ہونا، کل ایک پینل کا فقط آنا الحمدللہ اس بات کی تائید ہے کہ خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہی فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے۔ خان صاحب کا کل فیصلہ بھی وہی تھا، آج بھی جو وہی فیصلہ ہوگا، کل بھی جو فیصلہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو خان صاحب کی طرف سے آئے گا۔ میں صرف اتنی گزارش آپ کو کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم یہاں کیوں ہیں، اس مقام پہ ہمیں کیوں لایا گیا ہے۔ ہمارے خلاف 180 کیسز بنائے گئے، ہر آئے روز ایک کیس بنتا تھا، عدلیہ کے پاس جاتے تھے، وہ ریلیف جو ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں ریلیف نہیں مل سکا۔ آج بھی ہمارے آدھے سے زیادہ لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہے۔ میری سب سے پہلے چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ براہ کرم اپنے گاڑیاں واپس نہ کرے، ہمارے حقوق کا تحفظ ہمیں واپس دلا دے۔ بے شک اس مقام پہ آج ہم کھڑے ہیں، یہ جتنا انتشار ملک میں پھیلایا گیا، کوشش جس طریقے سے کی گئی کہ جس پارٹی کو مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کی کریڈیبلٹی زیرو ہے اور پاپولرٹی بڑی لو ہے، عوام کی آواز کو سننا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ عوام کی آواز کو سنا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے یہ اقدام کیوں لیا ہے؟ آج ایک نیا چیئرمین کیوں منتخب ہوا؟ خان صاحب کا جانشین اور نمائندے کی حیثیت سے میں یہ ذمہ داریاں نبھاتا رہوں گا، لیکن پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، 1960 سے پولیٹیکل پارٹیز اپنے الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہیں۔ 1960 سے لے کے آج تک 175 پارٹی میں سے کسی کی الیکشن کو ایسا نہیں دیکھا گیا جس طریقے سے ہمارا الیکشن دیکھا گیا۔ کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے باوجود کہ فارن فنڈنگ سارے پولیٹیکل پارٹیز کے دیکھے جائے، صرف پی ٹی آئی کا دیکھا گیا۔ لیکن الحمدللہ عوام بیدار ہے، عوام دیکھ رہی ہے، ظلم کا راستہ روکے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں کامیابی سے ہم کا سفر کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، لیکن آج صرف آج ہمارا بڑا ایونٹ نہیں تھا، آج ہمارے الیکشن کے مطابق ایک ریزولوشن پاس ہونا تھا کیونکہ ایک پینل آنا تھا۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بحث کریں گے، لیکن آج میں صرف اتنا کروں، میں جب تک ہوں خان صاحب کے نمائندے کے طور پہ کروں گا، یہ منصب اس وقت تک میرے پاس ایک امانت کی طرح پہ ہوگا جب تک خان صاحب واپس نہیں آتے۔ خان صاحب عمران احمد خان نیازی صاحب چیئرمین تھے، آج بھی چیئرمین ہے اور انشاءاللہ چیئرمین تا حیات خان صاحب نے یہ انتخاب کر کے خاندانی موروثی سیاست کا خاتمہ کیا ہوا ہے۔ خان صاحب کو آپشن دی گئی اپنے فیملی کی، خان صاحب نے کہا 27 سال سے میں اسٹرگل کر رہا ہوں خاندانی سیاست موروثی سیاست کے بغیر۔ خان صاحب کا نظریہ ہے کہ پوٹینشیل ایبیلٹی اور ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ہم چیزیں دیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جس ادارے میں، جس علاقے میں، جن لوگوں میں آپ فریڈم دیتے ہیں، رسپانسبلٹی دیتے ہیں، وہ ادارے، وہ لوگ، وہ حلقے، وہ عوام، وہ زیادہ سٹرانگر ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام بھی بہت جلد سٹرانگر ہوگی اور جس مقام پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہنچیں گے اور جس انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھو ایک دن واپس خان صاحب آئیں گے اور وہ اٹھائیں گے پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کا انشاءاللہ تعالیٰ۔
मैं आखिर में आप सब से दरख्वास्त करता हूँ, आप सब से दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे लिए दुआ करें कि ये मनसब मैं उस वक्त तक संभालता रहूँ जब तक खान साहब वापस नहीं आते। और आपसे मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, फिर क्वेश्चन में लेता हूँ। एक दुआ की दरख्वास्त करता हूँ और वो ये कि खान साहब जल्द से जल्द वापस आ जाए। हमारे साथ सारी जुल्म की गई है, उसकी पूरी दास्तान है। पूरी कौम का है किनारा। मैं इंतज़ामिया के आज के हमारी सिक्योरिटी देने पे और अच्छे निकात कराने पे इंतज़ामिया के भी भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमीशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इन निकात को कामयाब बनाया, और मैं सब साथियों का शुक्रिया अदा करूँ जो इधर आए और उनको कामयाब बनाया। ये बताएं कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज आप चेयरमैन मुंतखब हो गए, मुकर्रर हो गए। इंतखाबात की तैयारी क्या है? आप खुद हिस्सा लेंगे केपी में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, क्या क्या? देखें, हमारी तैयारी मुकम्मल है, पीटीआई की तैयारी मुकम्मल है। पीटीआई के वर्कर, सपोर्टर और पार्टी को सिर्फ और सिर्फ उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन इलेक्शन का दिन होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे वर्कर ऑलरेडी कैंपेन में हैं, वो रोज़ हमारी कैंपेन जारी है। आप ये देखते नहीं है कितने लोग खुशी से आ रहे हैं। हमें सिर्फ इंतज़ार है उस तारीख की इंशाअल्लाह ताला। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक ग्रुप को फाल कर दिया गया, पंजाब में तरीन ग्रुप को, और वो दावे भी कर रहे हैं कि पीटीआई हमसे जीत कर दिखाए, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि अवाम को कोई डिफीट नहीं कर सकता। जिन लोगों ने अवाम की डिफीट की कोशिश की है वो नाकाम हो चुके हैं। पीटीआई के साथ अवामी ताकत है, पीटीआई के साथ अवाम की ताकत है, पीटीआई के साथ अल्लाह की मेहरबानी है, पीटीआई के साथ इंशाल्लाह अपने एक नज़रिए के पीछे, उसके पीछे स्ट्रगल की कोशिश है। 27 साल तक स्ट्रगल की कोशिश की। खान साहब आज अगर जेल में है तो एक स्ट्रगल करने की वजह से वो कुर्बानियाँ जो वो दे रहे हैं इस मुल्क और इस निज़ाम को चेंज करने के लिए दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जिस दिन इलेक्शन आएगा ये जितने मुखालिफिन कर रहे हैं हम डिफीट करेंगे। याद रखना इन सब की ज़मानत ज़ब्त होगी इंशाल्लाह। पहले तो जब अनाउंसमेंट हो रही थी आपका इंतजार नहीं किया गया। दूसरी बात ये कि इतनी छोटी सी डाइस पे पहुंचने के लिए आपको कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ा, तो इतनी बड़ी पार्टी को आगे कैसे लेकर जाएं? नहीं, इंशाल्लाह बेहतर तरीके ये लोगों की मोहब्बतें जो आए। दूसरी बात ये कि मैं हूँ एक नुमाइंदा, एक कैंडिडेट हूँ, और वो इलेक्शन का अनाउंस करना का काम है हमारे आइन के मुताबिक फेडरल इलेक्शन कमीशन का। मैं आपको सिर्फ इतना ज़रूर बताऊं, हमारे आइन के मुताबिक जो इलेक्शन होने हैं उसकी ज़िम्मेदारी होती है इलेक्शन कमिश्नर को, और जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है वो 5 साल के लिए उसका इंतखाब किया जाता है। और पैनल का जो शेड्यूल दिया गया था, कल 3 बजे तक पैनल थे, उसमें एक ही पैनल आया था जो खान साहब का मुंतखब नामजदशुदा पैनल था, वो मेरा और उमर अयूब साहब का पैनल था सेंट्रल में, और जो सूबाई हमारे पैनल आए थे वो 4 पैनल हमारे आए थे। वो सारे साहिबान आज भी यहाँ मौजूद है। इस डेलीगेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पंजाब भी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको वेलकम करते हैं यहाँ पर। यहाँ सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, यहाँ का केपी के वाले सारे आए हुए हैं, तो सारी सूबों की नुमाइंदगी हो रही है। हमारे आइन के मुताबिक ये है, रूल्स के मुताबिक, कि अगर एक पैनल रह जाए तो वो इसके साथ अमल जो जहाँ विन्यू हुआ होगा वोट के लिए, वहाँ लोग उसको अप्रूव करते हैं तो हम अनाउंसमेंट करते हैं, और कानून के मुताबिक उन्होंने कर लिया। सर, वो एक्चुअल ये है कि हमें जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया है उसके मुताबिक हमारे इलेक्शन होने थे। आइन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2019 के मुताबिक वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, सेंट्रल प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो पीटीआई के हैं वो इलेक्टिव ऑफिस नहीं है, वो नॉमिनेटेड ऑफिस है, वो चेयरमैन करता है, वो भी इंशाल्लाह कल तक हो जाएंगे। ये उसके मुताबिक है, उनका इलेक्शन नहीं होना होता, वो आइन के मुताबिक। सेहत कार्ड बंद है सर, सेहत कार्ड बंद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रिहा करो, 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 जल्द करेंगे हम। हाँ, आज हमने ये प्रोसेस से गुजर के कल नोटिफिकेशन होना हमारे इलेक्शनों का, और इंशाल्लाह ताला मंडे को हम कमीशन में फाइल करेंगे और उसके फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंशाल्लाह उसमें सारी डिटेल देंगे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ पहले से की बातें चली आ रही थी
अभी आप चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, तो उनके साथ तरीका क्या होगा, बात इलेक्शन से पहले क्या होगी, क्या सूरत हाल है, और जो 9 मई के वाक़यात हुए थे उसके बारे में क्या होगा? देखिए, पीटीआई का किसी के साथ झगड़े का कोई इरादा न है, न कभी किया और न हम करेंगे। और खान साहब का जो नज़रिया पहले से वाज़ेह है वही नज़रिया चलेगा। वो कल भी वही नज़रिया था, आज भी वही नज़रिया है और इसके मुताबिक हम चलेंगे। हम सबको ये कह रहे हैं, हमारे साथ ज़्यादती बड़ी हुई है। खान साहब आज जेल में हैं तो ज़्यादतियों की वजह से 180 केसेस बने, 300 मरतबा हम कोर्ट में पेश हुए, कमीशन की तरफ से केसेस हुए। जब से खान साहब जेल गए हुए हैं तब के बाद भी केसेस चल रहे हैं। एक केस से बेल ग्रांट होती है तो दूसरे केस में पकड़ा जाता है। जजमेंट अगर आप सस्पेंड करते हैं तो जजमेंट किस तरीके से आपने दी, वो इस वजह से दे दी कि हमें सुना भी नहीं गया, मौका भी नहीं दिया गया, आपने कन्विक्ट कर दिया। कमीशन ने उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का क्लास डाल दिया, जिसकी वजह से फिर आप हमसे बल्ला रोकने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से हमें ये आज का इकदाम करना पड़ा। तो आप कितनी ये सारी दुनिया देख रही, अवाम देख रहे। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।